अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेशल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं मौजूदा अमरीकी सदर मिस्टर जो बाइडन, साबिक अमरीकी सदर मिस्टर बाराक ओबामा और टैक्स चोरी के इल्ज़ामात की जद में आए हुए साबिक अमरीकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों जी पुत देखिया मैं पुत तेन पहले आंदियां कहता सी एंकर तबाडा इन्हां नाल रले आ वेखना जरा ओदा सादा साबक अमरीकी सदर ते मेरा टैक्स चोर साबक अमरीकी सदर यानी लाजमन गंदा करके तारफ कराउना मेरा नहीं कहना कि भी अमरीकी सदर रहा ये ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम च आके मैनू तो लगता मैं किधरे उत्थे बापड़ा च लैंड सुपरिटेंडेंट रही हूं। बात सुने, मैंने आपका साबिक अमरीकी सदर के तौर पे तारुफ करवाया है। मैंने कब कहा कि आप अंजुमन ताजरान के साबिक सदर हैं? और बाकी ये इल्जामात की बात रहेगी तो इल्जामात की जद में तो आप आए हुए हैं। बेटा ना क्लियर हो तू मैं आंदी इस बच्ची नु कहता तुम्हारी बच्ची है ना तुम्हारे प्रोग्राम दी हासा वा मैं आंदी इनु दसिया कि पुत वेख लवी ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਦ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੌਲੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਬੁੱਢੇ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਟਰੰਪੂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪੂ ਲੈ ਆਵੋ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਤੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਆ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਡੇਵਿਡ ਤੇ ਪੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਮਲਾ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਡੇਵਿਡ ਤੇ ਪੀਟਰ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਲੰਮਿਆ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਐਲਸੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦ। जुनैद साहब ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ मैं सादा जी जिंदगी गुजारे तौबा 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 करा देती तू जालिमा तौबा तौबा। मैं सादा जिंदगी गुजार रहा बिल्कुल। अब देखो ਦਰਵੇਸ਼ਨ अब देखो मेरी टाई पाची हुई ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਟਾਈਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਬੂਤੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਪਾਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਕ ਦੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਐਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਟਕ 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 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का। नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो दे ना, अवाम जानना चाहती है, आप जवाब दें। अमरीकी अवाम के सामने आप पूरी तरह से जवाब दें। पुत मैं जवाब दियांगा क्यों नहीं दियांगा। तो मैं पूछ रहा हूँ ना 2018 में आपने $10 लाख का टैक्स अदा किया है 2020 में टका भी नहीं दिया। नहीं तो कमाई कोई नहीं तो मैं काद ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਵਾਂ ਟੈਕਸ। तो कहाँ चलेगी कमाई 2 साल में? ਉਹ ਪੁੱਤ ਬੇੜੇ ਕਰਕ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਤੋਂ ਨਾਮਰਾਦ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। शराब नोशी का? ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਗੌਂਡ ਗੌਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਪੀਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਟੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੀ ਕੇ
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਲੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਵੇਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੱਟੀ ਖੁਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੂੰਡੇ ਰਖਾ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਗ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲਾਈ ਵੀ ਪਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਘੁੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੁਣ ਲੂਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਠੀ? ਅਗਲਾ ਪੈਗ ਫੜ ਕੇ ਕਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੋ। जब ये भी बुरा लगेगा ना कि कोई आगे कहेगा यार मुझे एक पैक बना दो और बार वाला कहेगा ठहर जा पहले मैं होना दे दे बना लो। ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। अजूरे वाला आपने अपने दौर में ही गंद डालना शुरू कर दिया था। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਲੀਨ ਤੇ ਦਹੀਂ ਰੋਡ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਪੂਦਨੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਰੋਡ ਬੈਠਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤ? 2016-17 में आपने कुल मिला के $750 टैक्स दिया था। ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ। आपने टेक्सचरों को और शरीफ शहरियों को इकट्ठे उठा दिए। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ? दो ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹਾਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपके और इनके तर्ज जिंदगी में लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह भला करे। ये अल्लाह ने ओबामा तानू को बड़ी देखा इज्जत देनी। अल्लाह ने तानू बहुत इज्जत देनी तानू। ये ओबामा को देखा है इन्होंने अभी अपने ट्विटर अकाउंट पे 2022 में जितनी किताबें पढ़ी हैं, जितनी मूवीज देखी हैं, जहां जहां पे ये सैरो तफरी के लिए गए हैं, उनकी पूरी डिटेल्स जारी की है पूरी ग्रेस के साथ। ये होता है ग्रेसफुल ਉਹ प्रेसिडेंट। ਪੁੱਤ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਸ਼ਲ ਵੇਖੀ ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਕਣਪੱਟੀ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। और मेरे बोल क्यों ध्यान पाना होगा? अच्छा मिस्टर बाइडन आप बताएं ना जरा। आपने अभी एक बयान दिया, आपने कहा कि मैं पहली नज़र की मोहब्बत पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और आपने ये भी बताया कि जो अभी आपकी अहलिया हैं आपने उनको 5 मरतबा प्रपोज किया है, फिर कहीं जाके मानी है वो। 5 मरतबा इन्होंने प्रपोज किया है उसको। ਪੋਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਂਦਾ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ CSS ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ MPhil ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 300 ਲੂਮਾਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। वैसे मिस्टर प्रेसिडेंट जरा हमें बताएं तो सही ना कि 5 मरतबा प्रपोज किया फिर जाके मानी, क्या वो हुआ? सर 5वीं दफा भी लड़की ने नहीं मानना था। ये सो जब प्रपोज कर रहे थे इनके दांत गिर पड़े। फिर उसने कहा ये तो बुजुर्ग आदमी है, उसे फिर लव हो गया। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੀੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੀੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਬਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਏ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣੀ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦਬਾਇਆ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਵਾਰੇ ਕੱਢ ਲੋ, ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੇ ਮਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਲਾੜਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਛੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। छुआरा बीड़ की वजह तो नहीं, शुगर की वजह तो नहीं सीखा था। ਆ ਵੇਖੋ ਲੜਾਈ ਜੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ। ਪੋਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵੋ।
ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲਵੋ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ? ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਤੇ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਾਨੇ ਆ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ दिन फिर बारबेक्यू ही चुकना। जैसे बंदा दूध उबालने के लिए रखता है और उबल जाता है और बाद में शोर मचाता है वो तो तले लग गया। ਪੁੱਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰੰਪੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। अच्छा ये बताएं, मिस्टर एलन मस्क ने आपका ट्विटर अकाउंट तो बहाल कर दिया है, लेकिन अभी तक आप ट्विटर पे वापस आए नहीं है बहाली के बावजूद। नाराजगी है? ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੇਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟਾਂ ਟਰੰਪੂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮਗਰ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया आपने कोई ट्वीट नहीं की। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, बंद कर देंगे, वो भी बंद हो जाएगा अभी फिर। 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਅਹਮੀਅਤ ਬਣੀ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਟ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। अच्छा मिस्टर बाबा ये तो बताया ना कि बुक्स कौन सी पढ़ी है 2022 में ਪੁੱਤ आपने? ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੋਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਡਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਡਾ ਕੇ ਧੋਤੀ ਤੇ ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਿੱਧ ਪੜਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਗਿੱਧ ਪੜਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਕੱਬਾ ਪੜ, तू 5 चूहे घर से निकले पढ़, तू अंगूर खट्टे हैं पढ़, तू गुलहरी की चलाकियां पढ़ ले, तू राजा गिद्ध ही शुरू कर दिया भाई। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऑनलाइन कमेटियां डालती थी, अच्छा, पूरे पाकिस्तान से लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, कमेटियां डालते थे। अचानक पता चला कि अम्मा जी भाग गई। अच्छा भाईजान, कई दिन गुजर गए लेकिन अभी तक ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जो कराची में सिदरा नामी खातून कमेटियां खा गई है ना, कहते हैं कमेटियां खा गई, तो वो 42 करोड़ रुपए की कमेटियां एक खातून खा गई। अच्छा जी, 42 करोड़ रुपए की 100 से ज्यादा कमेटियां, एक औरत, और वो ऑनलाइन बिजनेस करती थी, ऑनलाइन कमेटियां डालती थी। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से लोग उस पर ट्रस्ट करते थे, कमेटियां डालते थे। अचानक पता चला कि अम्मा जी भाग गई। हाय 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 यार, ये तो कमाल ही बात बड़ा सुनाई है। अफसोस की बात है। और तुम देखो कि कैसे कैसे बेचारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए होंगे। ये दूसरी छोटी डबल शान थी, ये डबल शान थी ये बकायदा। जैसे डबल शाह कहता था ना, अरेस्ट होने के बाद तसल्ली देता था कि नहीं जी मैं पैसे दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। और फिर कई डबल शाह पकड़े गए। हर बंदा पकड़े जाने के बाद कहता है कि नहीं जी मैं पैसे दे दूंगा। एक उम्रे वाला बंदा था, वो उम्रे की आड़ में अरबों रुपए खा गया था, आज तक 1 टका नहीं किसी को वापस किया। तो उसी तरह ये भी अपने इसमें वीडियो मैसेज में कहा है कि जी मुझे एक दफ़ा काम करने दिया जाए, यानी मजीद उल्लू बनाने दिया जाए, तो मैं लोगों के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, नहीं, वैसे ये तो कानून ना फौरी तौर पे इनको चेंज करना चाहिए, होना चाहिए चेंज। जो बंदा इस तरह का काम करता है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर लेता है, या उसका फौरी तौर पर हर चीज जब्त करके लोगों को देना हो ना, कोई जब्त करने वाली चीज तो हो ना। अब इस खातून का तो कुछ भी नहीं है। ये को असल प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ बचत का सवाए कमेटी डालने के और कोई रिलायबल तरीका है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे और यार मगर चलो 100-100 रुपए की कमेटियां खाने वाली माइयां तो सुनी हुई हैं।
करोड़ों रुपये की कमेटियां खा गई। इस औरत ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसने ऑनलाइन कमेटी डाली और एक नहीं 100 कमेटियां डाली हुई थी, 100 से ज्यादा कमेटियां डाली हुई थी इस औरत ने। और वो जो हम बार बार बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ देखो कई दहाइयों से ये सिलसिला कमेटी डालने का जारी है और एक अरसे तक, बल्कि अब भी बाय एंड लार्ज देखा जाए तो इसको एक महफूज तरीका समझा जाता है। हर जगह पे ये वाकयात पेश नहीं आते। ये जिया ने 2 कमेटियां डाली थी, ये तो नहीं कहीं गई। हाँ नहीं कमेटियां डालते हैं लोग, जैसे यार मगर गुस्ताखी माफ, 1 मिनट ठहर जाओ, कथा कलामी माफ, वो महल्लेदारी में जिसका पता हो, हाँ, तो ये फूफी, क्या- ये चाची, मैं कह रहा हूँ। ताई, बिल्कुल। उसका पता भी तो हो। ये जो ऑनलाइन वाला सिलसिला है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ऑनलाइन तो ये अब हमें पता चल जाना चाहिए। पता चल हमारे जाना मुल्क के अंदर तो सोशल मीडिया जो है हाँ जी। वो 80% फ्रॉड है। अच्छा, दूसरा एक झूठो और- झूठ चुताली। एक और प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो ऑनलाइन कमेटियां, एक आपने ये रिक्शाओं के पीछे बैनर लगे हुए थे कमेटी डालें। भाई मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, मैं कैसे कमेटी डाल दूं यार। रक्शे च चलो बंदा बैठ ते जाए, कमेटी अगले किने चौक पालो? उतरन वास्ते कमेटी तेरे नाल कदली रिश्तेदारी कर रही है। और लिखा था बोली वाली कमेटी। देखिए थोड़ा सा अगर आप जायजा लेना, जी। ये हमारा लालच ही इसके पीछे जो है वो तबाही का बायस बन रहा है, बिल्कुल। या एक अच्छा सिस्टम था या है जो खराब होता जा रहा है, वो ये बोली वाली कमेटी और टोली वाली कमेटी, ये इन्होंने भाई बोली वाली कमेटी क्यों? जैसे जो कमेटी है वो कमेटी की तरह डलनी चाहिए ना। आप ज्यादा से ज्यादा ये तो कह सकते हैं कि आप पहले से तय कर लें कि इसने लेनी है, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे जो जरूरतमंद होता है, और ये 70-80% जो है ये खवातीन ये काम करती हैं। क्यों करती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, खवातीन जो है जिसको ज़रूरत होती है, बेटी की शादी करनी है या कोई घर बनाना है या कोई कमरा बनाना है घर में, तो वो कमेटी डाल लेती है। आज तक कभी कोई इतना बड़ा वाकया पेश नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर सुनने में आता है कि जनाब एन कमेटी से 2 दिन पहले अम्मा जी को कुछ हो गया है तो वो कुछ दिन के लिए डिले हो जाता है। कमेटी अम्मा ने जरा आगे बढ़ानी होती है तो उतनी देर तक अम्मा जी हॉस्पिटलाइज होती हैं। अच्छा सर जी, डबल शाह तो डबल करता था पैसे। अब वो तो फ्रॉड, वो तो इसके साथ तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं ना, वो तो सीधा सीधा फ्रॉड था। हाँ। लेकिन ये जो हमारे यहाँ गली मोहल्लों में या खानदानों में या बाजारों में कमेटियां डलती हैं ना, ये आम तौर पे हम देखते हैं कि जो रिलायबिलिटी है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, कि आपको भरोसा होता है कि यार ये औरत जो है इसका घर ये है, खानदान हम कई नस्लों से इस फैमिली को मुंह जानते से भी हैं, लगती है, मुंह से भी लगती है भाई कमेटियां, लेकिन चंगी औरतें। चाहे अच्छी औरत है। इसी तरह बाजार में जो बिजनेसमैन मिलके कमेटियां डालते हैं वो भी ये देखते हैं, उस बंदे के साथ कमेटी नहीं डालते। अगर थैला कहीं जाए जी आज मैंने तेल की दुकान यहाँ खोल ली है तो लाओ जी कमेटियां, यार कल तू तेल शुरू किया आज तू कमेटियां शुरू कर, तो लोग तो जाहिर है कि इसको लाख लाख रुपया महीने का नहीं देंगे ना। लेकिन अगर पहले से कोई इसको पता होगा जनाब ये 30-35 साल से इसकी यहाँ पे दुकान है, कई नस्लों से ये कारोबार कर रहे हैं, फिर इतबार कर लेंगे। फिर एतबार कर लेंगे उसको फौरन सारा बोलना। पता होवे लोगों ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ पता होगा। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ यार। तो आम तौर पे ये जो इतबार का फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बावजूद 4-5%, 10% वाकयात पेश आ जाते हैं। ये इसने मुझे बताया था, कहता जब मैं एक्टिंग में नहीं आया था तो कहता कि मैं माई बन के कमेटियां डालता था गुजरांवाला में। सबसे बड़ी बात ये है कि यार गुस्से से क्या देख रहा हूँ, बोलने बताया नहीं था मुझे। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਈ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। जिस भाई के पास बंदे ने कमेटी डाली हो ना, अपनी सगी दादी से ज्यादा उसकी सेहत का ख्याल रहता है। सुबह दोपहर शाम पूछते हैं माँ जी कोरोना तो नहीं हो गया? मैं केड़ा कोरोना? मेरा टेम्पो निकाल प्लीज मुझे करैक्टर चाहिए प्लीज आज फिल्म में चाहिए करेक्टर। ओ माई कहती है कोरोना तो खत्म हो गया, केड़ा कोरोना? के गले में गरारी है। नहीं, यकीन करो जिसके यहाँ कमेटी डाली होती है ना पूरे खानदान को उसकी फिक्र होती है। यार ये साड़ी जेडी माई कमेटियां वाली है, ये जब भी कमेटी डालती है मैंने देखा अपना गोगा थैला गौरी 5 मिनट लेट हो जाए सारे पूछने लग जाते हैं अल्लाह खैर करे जिया नहीं आया, कह देते हैं यार शो हो जाएगा, और शो नु छड्डो कमेटी। जिसकी तरफ मैं बात करना चाह रहा हूँ, इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमारे यहाँ
18 साल से ऊपर के 34% मर्द ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट है, 34%, और खवातीन की तादाद सिर्फ 7% है, जबकि हिंदुस्तान में ये तादाद 76% है। 76% खवातीन के बैंक अकाउंट मौजूद है। ठीक है, हमारे यहाँ एक बहुत ज़रूरत इस अमर की है कि हम खवातीन के बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवाएं। पता नहीं क्या हमें क्यों मुसीबत पड़ी हुई है, हम क्यों एतबार और एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होते। बेटे का अकाउंट मौजूद है, बेटी का नहीं है, शौहर का है, बीवी का नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अकाउंट होने चाहिए, उसमें आपके बचत के और बहुत सारे तरीके निकल आते हैं। और खास तौर पे बीवी का इसलिए नहीं अकाउंट ज्यादा खुलवाते कि बीवी फिर बार बार कहती है ना, मैं जब भी बैंक को लंघनी मैंने चौकीदार आंदे तेन ते खावन देंदा ही कुछ नहीं, तू तो भैणा कदी आई नहीं बैंक च, अकाउंट ही मेरा तो खुलवाया है, मेरे अकाउंट च कुछ जमा करवा छो, कला अकाउंट डरदा ही ना होवे। सड़े हुए ताने मारती हैं, जिवें ਤੁਹਾਡਾ दिल मेरी मोहब्बत तो खा ली है, मेरा अकाउंट पैसे तो खा ली है। फिर टेम्पो निकाली, फिर टेम्पो। यार टेम्पो तो अब ये निकालता है, अब एक्शन बड़ा बड़ा अच्छा करता है। वैसे सच्ची बात ये है कि खवातीन बेचारियों को ना जी अवेयरनेस यहाँ पे बहुत सी चाहिए, हर हवाले से ही, और ये ख़ास तौर पे ये जिस हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वाकई बहुत सी खवातीन तो बेचारियाँ खामदों को फिर डरती हुई बताती ही नहीं और इसका मतलब है उन्होंने जो डाली होती है ना कमेटी, वो भी शौहर को बगैर बताए डाली होती है। अच्छा, आम तौर पे कमेटी डाली ही इसलिए होती है नहीं दसना, नहीं वो कमेटी का दी रह गई जेडी खामद नु दस देता। सुनो तो सही, अक्सर बीवियां जो हैं वो कमेटी हर महीने जब देनी होती है ना, उस वक्त तो शौहर को बताती हैं कि जनाब वो महीने का 5,000 मैंने कमेटी डाली, नहीं उसी टेम्पो में कहो। लेकिन जब कमेटी निकलनी होती है ना, उससे पहले आहिस्ता से बता देती है, वो आपको पता है ना खाला सुगरा फौत हो गई है, ये नहीं बताती कि खाला सुगरा कमेटी वाली फौत और ना वो फौत हुई होती है, ना आप खाला सुगरा को जानते हैं, आपकी बीवी जानती है। बड़ा ही दिलचस्प वाकया बताता हूँ। पिछले दिनों ये तो है ना 42 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड हुआ, जो बड़ा स्कैंडल बन गया। इंडोनेशिया में भी एक फ्रॉड हुआ है। वो पता चला अचानक एक खातून ने इसी तरह कमेटी डाली हुई थी, वो करोड़ों में चली गई, और पता चला कि उसके बेटे ने एक ट्वीट की कि मेरी अम्मा फौत हो गई जिसने कमेटी डाली थी। भाई अम्मा तेरी फौत नहीं होगी, जेड़ियां 100-150 औरतां फौत बेचारियां हो गई अम्मा तेरी की फौत हुई। उन लोगों ने थोड़ा शक शुबे का इजहार किया कि कहाँ पे फौत हुई है। उसने कोई दूर दराज के शहर का नाम लिया कि वहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट में अम्मा जी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने कहा दफनाया क्या, कहते वहीं दफना दिया। बल्कि जिस चौक च फौत होए ना, उस चौक च अम्मा दफनाती है, बल्कि उन्हें जाके बहा भी देता है, स्पीड ब्रेकर नहीं है अम्मा ही। फिर लोगों को शक हुआ कि अम्मा मरी मुरी कोई नहीं, मरी साड़ी कमेटी है। मरते असी गए हैं। नहीं, ये जो मैडम सिद्रा साहबा सिद्रा माई ये कमेटियां ली, इसका क्या बना है जी, ये कहती क्या है? अब उसने कहा है ना, उसने किसी अपनी वीडियो मैसेज में कहा है कि जी मुझे मौका दिया जाए तो मैं कमेटियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस करवाऊंगा, यानी और कमेटियां बहुत खुदा की कसम जुल्म होते हैं इस मुल्क के अंदर, और उसका कोई नतीजा नहीं है। बहुत दुख वाली बात है कि बेचारे जो हैंड टू माउथ लोग हैं वो अपने गुजारों के लिए इस तरह की चीजें करते हैं जी, जैसे किस्तों पे प्लाट ले लेते हैं, और अक्सर ये सुनने को आता है कि भाई जी वो बंदा पे प्लाट ही नहीं देता जिथे को ले आसी। ये हमारा डॉक्टर ताहिर शहीर, इसने प्लाट तनख्वाहों में से देखो ना किस्त दे दे के लिया हुआ है, वो दे ही नहीं रहे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चकारी क्या होता है? जी जी, चकारी जी, चकोरी सुना हुआ है जी, चकारी पहली दफा। चकारी का मतलब है बदमाशी, गुंडागर्दी। अच्छा प्यारे बच्चों, सर्दियों की आमद का कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आप यूनिफॉर्म की कैद से आज़ाद हो जाएं। बिल्कुल आप लोगों ने ख्याल करना छोड़ दिया है कि आप ये क्लास है, स्कूल है, आपको यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए।
सरकारी तौर पे ले दें हमें, हम पहन लेंगे। सरकारी तौर पे ले दे। सर हमारा सरकारी स्कूल है। सर जी आपने तो मौसम सरमा की छुट्टियां भी नहीं दी। आपने कहाँ जाना है छुट्टियों में? इसने मटर में घुस के लेटना ही होता है। ये साथ वाले स्कूल वाले तो ड्राई फ्रूट भी देते हैं। सर आप कंबल भी पिछली दफा तकसीम किए थे आपने। यार ये कोई मस्कीनों का स्कूल नहीं है, ये स्कूल है बाकायदा, और माशाल्लाह सारे साहिब हसीयत लोग इधर पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, उर्दू की क्लास है जी। और आज हम एक मर्तबा फिर उन्हीं तराकीब का, मुहावरों का, ज़रबुल अमसाल का जिक्र करेंगे जिनके कुछ लफ्ज़ जो हैं वो तो हमें मालूम है उनका मफहूम और मतलब, और कुछ का नहीं पता होता। आज की पहली तरकीब है काम काज। काम काज करना। सॉरी सर, मैंने पहले भी बताया था आपको कि उर्दू में थोड़ी जरा मुझे प्रॉब्लम होती है। बेटा सीख जाएंगे। मैं समझता हूं कि आप एक तवील अरसे तक अंग्रेजों के साथ रह के तो नहीं, हम इंग्लिश मीडियम की फीस देते हैं हम तो। हाँ नहीं बेटा, आप घबराए ना, आपको उर्दू भी उतनी अच्छी आएगी जितनी आज आप तेजी और रवानी के साथ अंग्रेजी बोल सकते। सर जी ये नकल मकानी करके आए हुए ना, इस वास्ते उर्दू के एक्सेंट में प्रॉब्लम। मकानी का तो पता नहीं, नकल ये खूब करते। अच्छा, काम काज, ठीक है जी। बेटा। काम लफ्ज तो आपने बहुत सुना होगा, काज क्या होता है? ये वाला सर, ये वाला काज, यहाँ पर काज नहीं। जिसमें बटन लगता है। हाँ ये भी काज है, लेकिन जब आप काम के साथ काज लगाते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ और होता है। काज का ये मतलब भी होता है, काज ये जो हमारे बटन का सुराख है जिसमें हम बटन डालते हैं, इसमें कहते हैं जो ज़रा पहनी जाती थी, उस जब ज़रा को सिया जाता था तो वो जो सुराख है उसको भी काज ही कहते हैं। जब लेकिन काम के साथ आप काज कहते हैं तो उस काज का मतलब होता है कारोबार, धंधा, बिजनेस। ये फारसी का लफ्ज है काज। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वालिद साहब का कपड़े का काज है। काज था, बिल्कुल कह सकते हैं। सर जी ये गोगे ने नया काज शुरू किया है, दरबारों से लंगर इकट्ठा करके रीपैक करके बेचता है। झूठ, गलत। सर मेरा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काज है। जी जी जी, ये एक दरबार से लंगर इंपोर्ट करके दूसरे दरबार पे एक्सपोर्ट कर देते। अच्छा जी, एक और तरकीब है जी, चाल ढाल। ठीक है, चाल तो बहुत सुना है आपने, ठीक है। ढाल क्या लफ्ज है? सर ढाल एक तो वो होती है ना, वो होती है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं वो फिर तो बोलते हैं चाल और ढाल क्या मतलब हुआ। यहाँ पे ढाल से क्या मुराद है? इस ढाल का क्या मतलब आप है? ही बताएंगे सर, टीचर आप हैं, हम थोड़ी। ढाल का मतलब है अंदाज, स्टाइल, अंदाज, तर्ज, वाह वाह, स्टाइल। जबरदस्त। ढाल, उसकी ढाल बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि उसका स्टाइल बहुत अच्छा है। और ये ढाल जो है ये हिंदी का लफ्ज है। गुड। अच्छा एक और लफ्ज जी, वो भी एक आम तौर पे लफ्ज जो है उसका पता होगा, दूसरा भी बोला जाता है और गालिबन पता होगा लेकिन बहुत ज्यादा आम फहम नहीं है, वो है छानबीन। छानबीन, बिल्कुल। तहकीक करना, तफ्तीश करना, छानबीन करना। छानना का तो मतलब है ना छानना, छानना। चांद बुरा भी होता है। छान बुरा, छानना, वो भी वही है, वहीं से है छानना। और बीन का मतलब है देखना, नहीं देखना, दूरबीन, देखना। छानना और देखना, छानबीन करना। सर जी एक बीन सांप के सामने भी बजती है। हाँ, और एक भैंस के सामने भी बजती है। अच्छा जी आगे चले, तालमेल। तालमेल, ठीक है जी। अब ये ताल और मेल, आपको इसका मफहूम तो पता ही होगा कि तालमेल, रिदम, एक दूसरे के साथ जोड़ के चलना, कोऑर्डिनेशन। ठीक है? ताल क्या होता है और मेल क्या होता है? ताल मौसीकी में भी आप बोलते हैं, ताल। ताल है, ताल कहते हैं कि एक चीज को रिदम के साथ रिपीट करना, तरतीब के साथ दोहराने को ताल कहते हैं। कोई भी चीज आप एक ही रिदम, एक ही आवाज के साथ बजाते हैं, बजाते चले जाते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उसको कहते हैं ताल। ताल। मेल, मिलाना, ताल मिलाना, ताल से कहते हैं ताल मिला। तालमेल। तालमेल। अच्छा ये है, वरना मैं यही समझा कि कोई चोर पकड़ा जाए तो बड़े कहते होते कन्ना थले दो मेल। मेल वो पंजाबी में मेल है, और एक जो है फीमेल का मेल, वो भी वो उसी को भी पढ़ती हैं, फीमेल ने मेल को मेली। अच्छा जी अगला लफ्ज, चोरी चकारी।
चोरी आप तो जानते हैं ना चोरी। आपको कह रहे हैं, देखें मेरी तरफ देख रहे हैं पहला सर जी। नहीं मैंने चोरी तो आम लफ्ज है, मेरा मतलब है चिकारी क्या होता है? जी जी चिकारी। चकारी जी क्या चकोरी सुना हुआ है जी, चकारी पहली दफा। चिकारी का मतलब है बदमाशी, गुंडागर्दी, वो उचक्कापन जिसको कहते हैं। यानी कि एक चोरी करने आए फिर ऊपर से वो जदों को भी करे, ओए कड्डो बे, हाँ हाँ हाँ, चोरी चकारी करना यानी बदमाशी भी करना, ताकत के जोर पे चोरी करना। अच्छा और चकारी जो लफ्ज है ये संस्कृत का लफ्ज। सही। अच्छा जी एक और लफ्ज, जी जी सर। सोच विचार। सोच विचार। सोच का तो पता है, सोच विचार अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पंजाबी में जाना पड़ेगा। पंजाबी में आम तौर पे कहा जाता है विचार, विचार, फलां के विचार क्या हाँ है, जी। ठीक है। तो आपको अगर पंजाबी आती होगी तो फिर विचार का मतलब भी आ जाएगा। विचार का मतलब है फिक्र, गौर, सोच और फिक्र, विचार, गौर करना, फिक्र करना। की विचार कीते ने की विचार कीते ने पंजाबी अगर आपने पढ़ी है तो फिर आप ये, लेकिन उर्दू में हम अलग जो है खाली विचार लफ्ज नहीं बोलते, लेकिन विचार का मतलब है गौर व फिक्र सही। करना। अच्छा जी एक और बहुत आम सी तरकीब, बातचीत। बातचीत, हाँ जी। बात का तो पता है, चीत क्या है? जी 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 बातचीत। चीट। चीत चीट से तो नहीं, चीट नहीं नहीं यार, चीट इंग्लिश का लफ्ज है। चीत का क्या मतलब है? करना। चीत का मतलब है याद करना, जिक्र करना, बात। चेते से, ये चेते से। एग्जैक्टली मैं यही बताने लगा था। ये भी यहां पर भी आपको पंजाबी की हेल्प लेना पड़ेगी। चीत इज फ्रॉम चेता, चेता, याद करना, जिक्र करना, चेता करना, सही। बातचीत बातचीत, यानी बात भी हुई और याद भी की। यादें ताजा करना, ठीक है, उसको कहते हैं बातचीत। थैंक यू सर, आज मुझे उर्दू की बहुत समझ आई। थैंक यू। जितनी मर्जी समझ आ जाए, तुमने कौन सा बोलनी है। इसको इंग्लिश की आदत पड़ी हुई है। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सुबह उठ जाया करें, जाके दुकानें खोलें। अगर आप कहते हैं जी सुबह गाहक नहीं आता, यार आप शुरू तो हो। जब गाहक को पता चलेगा कि 8:30 दुकान बंद हो जाती है, मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे गाहक को पता चलने। अच्छा जी, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि मुल्क जो है वो बड़े मुश्किल हालात में है, बड़े मुश्किल मोड़ पे है। कोई कह रहा है कि पैसे मुक गए, कोई कह रहे हैं गो नहीं मिल रहे, कोई कह रहे हैं हो रहे अगले दिन देने के नहीं, कोई कह रहे भाई जी पिछले नहीं मोड़े थे अगो कितने अगले आंदे। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ नहीं गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ, वो अब हमारे काफी हो रही हैं पूरी आवाम में। उसमें अगर कोई चीज करने के लिए या कोई बचत करने के लिए या कोई ऐसा कानून में आते हैं या कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे ये चाह रहे हो हुक्मरान के भाई कोई थोड़ी बचत हो जाए, तो उस पे अवाम बिल्कुल साथ ही नहीं देती। जैसे अभी आजकल दुकानें बंद करने वाला काम है और ये अपना शादी हाल बंद करने वाला काम है। अभी फिर मेरा ख्याल है अनाउंस हुआ है कि 8:30 बजे दुकानें बंद करें और 10 बजे तक शादी हाल बंद करें। उसमें पंजाब और KPK और 2-3 और ने कह दिया जी ऐसी नहीं करनी है। उसमें मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी वजीर आयम हो, उसमें आप मुल्क देखें। आप सिर्फ वोट लेने के लिए अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये इंतहाई दुख वाली बात है। और बड़ी बड़ी फंसी हुई कौमें जो हैं वो बहुत मुश्किल हालात में अपने हुक्मरानों के साथ खड़ी होती है। जैसे हमने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था, ये हुक्मरानों के साथ खड़े होने की बात नहीं है, ये अपने आप के साथ खड़े होने वाली बात है असल में। तो जैसे हमने जिक्र किया था एक दफा यार, ये साइकिलिंग के हवाले से बेल्जियम में मुझे वहां के लोगों ने बताया था कि सड़कों पर रश बहुत हो गया। अब गवर्नमेंट परेशान हो गई, मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो बैठ के सलाह करनी शुरू हो गए कि क्या करें। कोई कहे जी सड़कें खुलियां करो, बिल्डिंगां तोड़ो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई उसकी मुखालफत कर रहा है कि ना 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 हमारी जो तारीख है वो सारी ख़त्म हो जाएगी,
یہ پرانی بلڈنگیں ہماری یہی تو خوبصورتی ہے. ہاں جی اخیر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ہم اگر گاڑی سڑک پہ کم لے کے جائیں, مطلب اگر اکیلے بندے نے جانا ہے تو وہ سائیکل پہ ہی جائے, اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے جانا ہے, فیملی نے جانا ہے, پھر آپ گاڑی نکالیں, ورنہ نہ نکالیں. تو لوگوں نے فوراً یہ بات مان لی, اور سائیکلنگ جو ہے وہاں پہ اتنی پاپولر ہو گئی, لوگ اتنے زیادہ سائیکل چلانا شروع ہو گئے کہ حیران ہو گئے. گورنمنٹ خود بڑا خوش ہو گئی کہ یار یہ تو کام مسئلہ جو ہے یہ حل ہو گیا. ہاں جی اب ہمارے ہاں بجلی کا سیاپا, انرجی کا سیاپا, گیس آ نہیں رہی, بجلی ختم ہو گئی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بیڑا غرق ہو گیا ہے سارے معاشرے کا. خدا واسطے جانے دیں یار, صبح اٹھ جایا کریں, جا کے دکانیں کھولیں. اگر آپ کہتے ہیں جی صبح گاہک نہیں آتا, یار آپ شروع تو ہو. جب گاہک کو پتہ چلے گا کہ 8:30 دکان بند ہو جاتی ہے, میکسیمم 15 دن لگیں گے گاہک کو پتا چلے. میرا مطلب ہے جس نے کپڑا خریدنا انہیں کو اخبار بند کے تو نہیں نکلنا, لینا تو انہیں کپڑا ہی ہے اور لینا ہی لینا ہے. اور وہ لے لے گا جب اس کو چاہیے ہوگا, جب اسے پتا چلے گا کہ بھائی 8:30 میں گیا تھا, دکان بند تھی, اور اسے پتا چلے گا جی کہ صبح 8 بجے کھل جاتی ہے یا 9 بجے کھل جاتی ہے, تو وہ صبح چلا جائے گا. بالکل کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے رزق مخصوص ہے آپ لوگوں کا, اس کو ناجائز طریقوں سے نہ حاصل کرو. تو اللہ پاک جو کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ کا رزق میں نے لکھ دیا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہے, تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ خدا واسطے جانے دیں یار. آپ اپنے ملک کی حالت دیکھیں, بہت بہت کرائسز آئے ہیں ملکوں کے اندر, قوموں کے اندر, وہ لوگوں نے ایک دم کھڑے ہو کے ساتھ دیا ہے, بالکل, اور حل کوئی اس کا نکال لیا ہے. اور جو گورنمنٹ نے کوئی لاہ عمل بنایا ہے, کوئی طریقہ کار بنایا, اس کو فوراً ڈائجسٹ کر لیا ہے, قبول کر لیا ہے. ہم ہٹ ہی نہیں رہے, ہماری تو اپنی اندر کی جنگ ہی نہیں ختم ہو رہی. باہر ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے یا کیا نقصان پہنچانا ہے, باتیں ہم کرتے ہیں جی کہ فلاں اسرائیل کا ایجنٹ ہے, فلاں امریکہ کا ایجنٹ ہے, فلاں بھارت کا ایجنٹ ہے. ہم تو اپنے خود نہیں سکے تو ہم نے کسی کا کیا ایجنٹ ہونا ہے, یا کسی نے کیا ہمیں نقصان پہنچانا ہے. بالکل ہم تو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تاجر برادریاں وہ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیا زوم ہے کہ ہم نے کیا کر لینا ہے. اب دیکھیں نا, اب لوگ جو ہیں وہ دڑا دڑ باہر جانا شروع ہو گئے. کتنی تعداد, لاکھوں میں لوگ باہر جا رہے ہیں, اور لوگوں میں مایوسی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. اس لیے خدا کے واسطے جب آپ کسی ریاست کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کا مذہب کہتا ہے کہ آپ اس ریاست کو اوبے کریں, اس کا حکم مانیں, اس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کو اختیار کریں. ناظرین, یہ تھا آج کا اسپہ حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دوست آپ کی زندگی میں نمک کی طرح ہوتے ہیں, جو کھانے میں نظر تو نہیں آتا لیکن نہ ہو تو مزہ بھی نہیں آتا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.